हाँ जी, आपको अब स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है? यस सर। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है ना? जैसा आपकी स्क्रीन आ रही है। यस हाँ, सर, जिसने आपकी अब स्क्रीन अपनी आ रही बुक है ना। ओपन की हुई है वो तो अच्छा हो गया, जिसको नहीं की हुई उसको ये नजर तो आ रहा है अब। Okay, to what extent can rigorously conducted and controlled development processes for new services enhance their success rate? Now we are focusing on the success rate of a service that we developed. In the last class, we studied a case of Marriott Courtyard where they designed a new service, right? And today we are going to focus on the controlled development processes for the new service that enhance their success rate. Now, we cannot foresee each and everything in the beginning, and therefore we have to uh, be creative and come up with the new options as we deliver that service to the customer. And fine tuning is done on the way. So you have to improvise at times when you see the customer's response, and then you sit back and you rethink it, that this service could have been delivered in a better way. And these are a few new things that we should add to our service delivery. So, a study by Scott and Stephen focused on discriminating between successful and unsuccessful new financial services. And they found the three factors contributed to success wherein in order to of importance. अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? जो बैंक्स ऑफर कर रहे होते हैं, राइट? और म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। लीजिंग कंपनीज भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रही होती हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले सब फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, राइट? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके अंदर वो लोग आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा के आपको प्रॉफिट देते हैं। एट टाइम्स दे आस्क यू टू डू कमोडिटी ट्रेडिंग, और उसके अंदर वो आपको करेंसीज की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जो जो करेंसी उस वक्त दे थिंक कि उसमें आपको फायदा होगा वो अभी आप खरीद लें, बाद में उसको फिर बेच दें, एंड नेट ऑफ आपको प्रॉफिट होना चाहिए उसके अंदर, राइट? सो डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज को फोकस करेंगे, एंड देयर दीज आर द थ्री मेन मेजर फैक्टर्स जो जब आप इंटरनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन मार्केट सिनर्जी. Market synergy: the new product fit well with the existing image of the firm, provided a superior advantage to competing products in terms of meeting customers' known needs, and received strong support during and after the launch from the firm and its branches. And further, the firm had a good understanding of its customers' purchase decision behavior. अब market synergy में he is saying that you should know your customer well. Whenever you go to a bank, they have this full form which they need to fill, that you should know their customer. They will ask you okay, what type of a business you are in, what are the different sources of income, what are your needs and wants. Do you want a loan? Do you want a short-term loan for bridging your immediate requirements? And do you want a long-term loan for importing machinery? Are you an exporter? Do you need, would you like the LC services, letter of credit services, and so on? So you have to know the customer's needs, and that's how you will be able to support that customer in a strong way. Plus, you have to know through market intelligence what are the competing products. मार्केट में दूसरे आपके कंपेटिटर्स कौन कौन सी सिमिलर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं टू द सेम कस्टमर, because the customer goes around on a shopping spree and he visits 4 or 5 different banks, and there he or she has to decide that which is the best option for me. So you need to know the customer's purchase decision behavior, कि उसको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, उसकी जाहिर है जब उसकी नीड्स पूरी होंगी और उसको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे वही ऑप्शन उसके लिए ज्यादा फीजिबल होगा. इट्स अंडरस्टूड.
right? So you have to have a firm and a good understanding of customers' purchase decision behavior. That's how you can accumulate all of your good advantages that you have over your competitors, and market synergy factor would go in your favor if you have good staff, you have good communication, you are prompt in delivering services, you have good LC arrangements with foreign banks, and at the end of the day, you are giving a customer a basket full of services with lower interest rates than your competitors. If you're giving them a running finance and if you're offering a lower rate than your competitors, your customer would be happy and he will never leave your bank's financial services. Organizational factors. There are strong interfunctional cooperation and coordination. Development personnel were fully aware of why they were involved and of the importance of new products to the company. If the company has come up with a new product, then they should clearly educate each and every staff member who is going to face the customer and who is going to deal with the customer, and they should clearly know what the product is all about, how is the bank going to benefit out of it, and how are the customers going to benefit out of it. Because if you don't tell the customer how you're going to benefit out of it, he or she will go to another bank. Simple as that. So then if you are sitting in a branch and you have to approve a loan for your customer, the loan will go to the credit department. Now that is a different department in the bank. So you should have fair knowledge of what the credit department would ask you before sending the loan proposal to that department, so that your loan proposal is not shot down by them, rather it is approved by them. आपने अगर पूरा पेपर वर्क कंप्लीट किया होगा कि क्रेडिट डिपार्टमेंट की क्या क्या जरूरियात हैं और कस्टमर से वो सारी इंफॉर्मेशन लेके, अगर वो नहीं ला सकता आप उसके ऑफिस चले जाएं, खुद वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके कंप्लीट आप प्रपोजल बना के क्रेडिट एडमिन को भेजेंगे, तो फिर आपके जो क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले हैं वो उस लोन को अप्रूव करेंगे, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑफर those financial services to your customer and make him or her satisfied with your services. अगर आपने लूजली केस को डेवलप किया और आपने क्रेडिट को भेजा, क्रेडिट वालों ने शूट डाउन कर दिया, तो 15 डेज के बाद पता चला आप कस्टमर को बता रहे हैं कि नहीं जी आपका तो लोन अप्रूव नहीं हुआ, तो वो तो आप पे नाराज होगा कि 15 दिन भी मैंने जाया कर दिए, लोन भी अप्रूव नहीं हुआ. तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और रिलेशनशिप मैनेजर आर यू, राइट? Market research factors. Detailed and scientifically designed market research studies were conducted early in the development process, and with a clear idea of the type of information to be obtained, a good definition of the product concept was developed. Before undertaking, field surveys were taken. तो आप पहले अपना होमवर्क करेंगे और फील्ड सर्वे में जाने से पहले फर्स्ट करें, आप एक कार लोन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप पहले जितने भी बैंक्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनके सारों के कार लोन प्रोडक्ट्स उठाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, एंड देन यू विल कम अप विद एन इनोवेटिव कार प्रोडक्ट जिसमें यू विल बी गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू योर कस्टमर. फॉर एग्जांपल, कुछ बैंक्स कहते हैं कि जी हम आपकी जो कराची से लाहौर तक के जो वो सर्विस चार्जेस हैं आपकी गाड़ी के वो नहीं लेंगे. कुछ कहते हैं जी हम आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, और वो उन्होंने बिल्ट इन किया होता है. उस वक्त तो आपको वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवा के दे देते हैं, लेकिन दे आर ऑफरिंग यू अ लोन फॉर 5 years, तो उसके अंदर वो उसकी जो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स बना के वो आपकी हर इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देते हैं और वहां से आपसे रिकवर कर लेते हैं, राइट? तो लेकिन कस्टमर खुश हो जाता है कि मुझे अभी फटाफट बैंक ने पेमेंट कर दी, मैंने बैंक को अपनी जो इक्विटी थी 30-40% वो मैंने बैंक को पे कर दी, बाकी पैसे बैंक ने दिए, मुझे गाड़ी मिल गई, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी बैंक ने करा दी और इंश्योरेंस भी करा दी, एंड आई एम हैप्पी नाउ, आई कैन ड्राइव ऑफ एंड एंजॉय माई सेल्फ. कुछ बैंक्स जो हैं वो इनिशियली आपको 500 लीटर पेट्रोल भी देते हैं साथ, ये शुरू में आप ताकि गाड़ी की प्रॉपर रनिंग कर सकें, और
उस वक्त आपको एक इनिशियल जो पेट्रोल की आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेट्रोल डलवाते हैं या किसी तरीके से भी आपको अपना खर्चा जो है वो बच जाएगा और आप ये बैंक लोन में ही आपको वो या इधर दे गिव इट टू यू एज अ गिफ्ट और उसको बैंक्स अपने एक्सपेंस शीट में शो कर लेते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास एक फ्यूल का पूल होता है, जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं या बैंक का अपना काम जो हो रहा होता है उसमें फ्यूल का खर्चा होता है और फ्यूल का एक हेड होता है विच दे कैन शो इन देयर एक्सपेंसेस। तो अगर वो ये लोन सिक्योर करने के लिए आपको 500 लीटर्स का लोन दे देते हैं तो 500 लीटर्स मींस अप्रोक्सीमेटली 100 से मल्टीप्लाई करो 50,000 रुपीज, तो आपको 50,000 का एक रिलीफ बेनिफिट दे रहे हैं विच द अदर बैंक्स आर नॉट ऑफरिंग, राइट? So you have to design your product intelligently, so because the product should work for you and you should understand the purchase decision behavior of the customer. फटाफट कस्टमर जो है वो रेडी हो जाएगा कि यार ये तो गाड़ी भी नहीं मिल रही है, साथ पेट्रोल भी मिल रहा है और पेट्रोल बैंक फ्री दे रहा है, तो दिस इज द बेस्ट डील, आई शुड गो फॉर इट. Another survey of financial services firms to determine what distinguish successful from unsuccessful products yielded similar findings. And in this instance, the key factors underlying success were determined by synergy, the fit between the product and the firm in terms of needed expertise. तो फर्म की जो नीडेड एक्सपर्टीज होती हैं और जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे होते हैं वो किस तरह से जेल इन करती हैं, एंड द रिसोर्सेज प्रेजेंट, कंपनी के पास किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स है, किस तरह के उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एंड एट व्हाट मार्केट रेट आर दे ऑफरिंग ऑल दिस कंप्लीट पैकेज टू द कस्टमर. Then internal marketing also plays a part. The support given to staff prior to launch to help them understand the new product and its underlying systems. This is your internal marketing, that you have to educate your staff and you have to communicate each and every benefit of the service to your staff clearly before they contact a customer and try and pitch that product to your prospective clients. Yet another study found that similar factors of market synergy and human resource issues like meeting customer needs and having a human resource strategy that links to the development of service processes are key to your success. Now, the Courtyard case that we did by Marriott, success in a very different industry, a people processing service with many tangible components, supports the notion that a highly structured development process will increase the chances of success for a complex service innovation. That was a new service designed for business travelers. And since it was structured, it was well thought out, so it had more chances of success. However, it's worth noting that there may be limits to the degree of structure that can and should be imposed. Swedish researchers Edwardson and Lar and Jan, they reviewed new service development in telecommunication, transport, and financial services, and they concluded that complex processes like the development of new service cannot be formally planned altogether. 100% planning आप पहले दिन नहीं कर सकते, लेकिन you can cover your bases intelligently by looking at what the competition is doing, and you can use your creativity and innovation can only rely on planning and control, and you always need to come up with new creative features which would benefit the customer and which would please your customer, since you are in the people processing service business. And there must be some elements of improvisation, anarchy, and internal competition in the development of new services. And we believe that a contingency approach क्या होती है कि if plan A doesn't go right, then we should hop on to plan B. और प्लान बी अगर नहीं चल रहा होता, किसी भी वजह से उसमें कोई और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, देन यू शुड हैव अ प्लान सी. ये सारी चीजें आपको पहले से कंटिंजेंसी अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है और कुछ चीजें इम्प्रोवाइज करनी पड़ती हैं. आपका जो मैनेजर ऑन द फ्लोर होता है उसको स्टैंडिंग देयर ही हैज टू डिसाइड.
अब अगर कुछ लोग आ गए हैं और वहां पे एक फंक्शन हो रहा है, राइट, और आदमी है, यानी जो कि वो एक अपनी कंपनी का जो पूरी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो आपके पास करना चाह रहे हैं आपके होटल के अंदर, एंड एट द सेम टाइम वो बैंक के लोगों को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है ताकि जो भी वो फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी कंपनी को पिच करना चाह रहे हैं वो भी वहां कर दें। तो वो सारा इन्वायरमेंट जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मीटिंग द नीड्स ऑफ दैट कस्टमर। अगर आपके पास पहले उस तरह की कोई चीज बनी हुई नहीं है तो वो आप यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो आपके लोग इतने क्रिएटिव होने चाहिए, इतने रिसोर्सफुल होने चाहिए कि वो कस्टमर की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए फिर वो इक्विपमेंट अगर होटल को खरीदना भी पड़ता है तो वो खरीद ले। अव्वल तो होता है उनके पास, लेकिन नहीं होता तो वो रेंट पे मंगवा सकता है, खरीदना नहीं चाहता तो, राइट। लेकिन वो आपको वो सारी चीजें वहां पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होंगी। दैट क्रिएटिविटी on one hand and formal planning and control on the other hand can be balanced with successful new services as the outcome, right? तो आपको सक्सेसफुल आउटकम लेने के लिए एक तो आपकी प्लानिंग और कंट्रोल बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, प्लस आपको ऑन द स्पॉट जो जो मिसिंग लिंक्स हैं उन मिसिंग लिंक्स को यू हैव टू ब्रिज द गैप्स एंड यू हैव टू मेक द service successful. So it depends a lot on the people who are implementing and delivering the service to the customer. And an important conclusion from the subsequent research in Sweden concerns the role of customer in service innovation. सर्विस इनोवेशन में कस्टमर का रोल भी आता है, क्योंकि जो हमने स्क्रिप्ट थ्योरी की थी और रोल थ्योरी की थी उसमें कस्टमर प्लेज अ रोल व्हाइल यू आर डिलीवरिंग द सर्विस. So at times you need to educate your customer as well before you start delivering the service. Researchers found that in idea generation stage, the nature submitted ideas differed significantly depending on whether they were created by professional service developers or by the users themselves. जो यूजर होता है उसको प्रैक्टिकल चीजों का पता होता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं उससे कस्टमर प्लीज होता है, राइट. दैट्स व्हाई दे आस्क फॉर अ पर्सन हु हैज 2 to 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि उसने वो प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखा होता है. और एक प्रोफेशनल सर्विस डेवलपर जो है वो हर चीज को आइडियली प्लान कर देगा. अब जब आप हर चीज आइडियली प्लान कर देते तो आपका स्टाफ हर वक्त 100% पे नहीं होता और Yes, sir. कस्टमर भी इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो वो सारी चीजें फिर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. ऑन द अदर हैंड जो यूजर खुद उस एनवायरनमेंट के अंदर रहा हो वो बेहतर उसमें आइडियाज दे सकता है कि इसको अगर हम ऐसे करके इंप्लीमेंट करेंगे तो इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल. क्योंकि कस्टमर हमारे से यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आया, वो एक सर्विस एंजॉय करने के लिए आया है और उसको हम पीस मील जो जो काम आता जाएगा उतनी ही उसको ट्रेन कर देंगे, बाकी उसको बता देंगे कि नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने आपको देनी है. अगर तो कस्टमर विलिंग होगा टू लिसन टू देम तो उसको आप उसी वक्त बता दें. कुछ होते हैं बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चिल कस्टमर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई जिस वक्त वो हम सर्विस आपकी हम स्विमिंग पूल जाएंगे तो फिर आप स्विमिंग पूल का हमें बता देना, अभी हम बैठ के वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स इन द लॉबी तो प्लीज डोंट बॉदर अस. समझ आ गई ना. हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं आपस में कुछ गपशप लगाना चाहते हैं, आप आके वहां उसको अपना लेक्चर पढ़ना शुरू कर दें कि जी उधर आपने जाना है तो ये करना है, लॉन्ड्री आपने जाना है तो इस तरह करना है, आपने हमारी Yes, sir. सर्विसेज यूज करनी है तो ऐसे करनी है. वो कहेगा भाई सर से उतरो, क्या करने आ गए हो तुम यहाँ पे, यू नो. और कुछ अगर लड़के शड़के इकट्ठे हो तो वो थोड़ी बहुत फिर बदतमीजी भी कर जाते हैं कि नहीं. तो आपको वो इम्प्रोवाइज करना होता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है कि ये कितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी पास करनी है और कितनी फिर बाद में पास ऑन करनी है. टोटल तो सर इस चीज पे यस सर. जी तो जी. सर प्रॉपर्ली इस चीज पर ऑर्गेनाइजेशंस ओवरकम नहीं करती, मतलब हर कस्टमर के मतलब उसके माइंडसेट के लिहाज से पहले ही प्लान किया हो कि मतलब इस टाइम पे सेशंस करने हैं या कस्टमर्स को रीगाइड करना है या उनको बताना है या जो हाँ, बोलते लेकिन ये हैं जो कि हमें पीपल इस चीज का हैंडलिंग है ना तब ये बताना बड़ी है. ट्रिकी. पीपल हैंडलिंग इज अ ट्रिकी थिंग कि वो आपको यस सर. अगले बंदे का मूड भी देखना होता है.
आपका अभी कोई बहुत पुराना दोस्त था, उसने कोई बहुत बदतमीजी कर दी, आपका इस वक्त मूड खराब हुआ है, ठीक है, आप होटल के अंदर आए और मैंने साथ अपना वो पूरा पढ़ना शुरू कर दिया, आपको बताना शुरू कर दिया कि आपने ऐसे करना है और वैसे करना है और वैसे करना है, तो आप तो आगे से काट लेंगे। यस सर, अंडरस्टैंड? तो वो यस सर, कस्टमर बिल्कुल का सही कह रहे आपको बिहेवियर देखना होता है, हाँ, और उसके मुताबिक फिर आपने वो एडजस्ट करना होता है कि उसको आप इन्फॉर्म कर दें कि देयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आई नीड टू कन्वे टू यू, बट आप अपना जूस पिए, आपके लिए मैं कोई वो यू शुड रिलैक्स, और जिस वक्त आप रेडी हों जस्ट गिव मी अ बज, ये मेरा नंबर है, तो मैं आके वो फिर आपके साथ आई टच बेस विद यू एंड वील डिस्कस दोस थिंग्स। समझ आ गई ना? यस सर। जब तो वो यस बड़ा सर, जब खुश हो जाते कस्टमर हैं। मतलब पूछेगा तब फिर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाँ, वो ठीक। कस्टमर है, आपका स्टूडेंट नहीं है। यस स्टूडेंट तो सर, क्लास यस सर। के अंदर वो आया है तो वो भी प्रिपेयर होके आया, वो उस वक्त उसको पता था कि मेरे इस वक्त लाइक टाइम वही है। चीज सर, वही चीज अगर हमें वो पे कर भी रहा है तो हम उसे उसके ऊपर कस्टमर के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकते। बिल्कुल इम्पोज नहीं आप कर सकते, आपने उसको जो लेटेस्ट इस वक्त रिसर्च हो रही है वो यही होती है कि आपने उसको साथ लेके चलना है और उसके मूड का भी ख्याल रखना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसके इमोशंस हैं, और यस सर, ऑब्वियसली। आपने भी अपना जॉब करनी है, तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना है। सर ये ठीक है। चीजों को मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखते हैं, लेकिन जब एज एन कस्टमर हम किसी जगह पर जाते हैं हम लोग, तो हम भी यही चीजें मतलब चाह रहे होते हैं कि हमारी तरह भी हमारे हमसे भी इसी तरह का ट्रीट किया जाए। हाँ, आप खुद भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो यस सर। यू शुड स्टैंड इन द कस्टमर्स शूज एंड से कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता और मैं इस तरह गर्मी में से बाहर से थका हारा हुआ आता, पता चले आप मुल्तान से अभी अभी लाहौर पहुंचे हैं, तो आप यस सर। 4-5 आवर्स की ड्राइव करके आ रहे हैं, हशर हुआ है, आपका जून का महीना है, और आते साथ ही आपको अब ठंडे पानी का और जूस का ग्लास देना चाहिए, या आपको वो पूरी इंस्ट्रक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बम्बार्ड कर देना चाहिए? ऑब्वियसली सर, पहले कस्टमर को इजी पहले रिलैक्स उसको करना इजी चाहिए, फिर रिलैक्स उसके बाद करें, अपना उसको जो वो भी। जरा थोड़ा सा चिल आउट करे, उसके बाद फिर उसके साथ बैठ के आप डिस्कस कर लें कि जी आपने इतनी बड़ी आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हुई है, तो उसके अंदर ये कुछ यस चीजें सर। हैं विच वी नीड टू डिस्कस विद यू बिफोर योर यस अदर सर। कलीग्स अराइव, और हम फिर इसको ताकि ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कोई किसी किस्म के हिकअप्स ना हो। या ठीक है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल सर, सही सर। A थैंक यू service सर। product comprises all the element of the service performance and create value for the customer. And it consists of a core product bundled with a variety of supplementary services. तो एक तो आपकी core product होती है, उसके साथ आप bundling करते हैं with a variety of supplementary services and elements and their delivery processes. कि एक तो सप्लीमेंट्री सर्विसेज देनी कौन कौन सी है, उसका फिर डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा। एक आपने सिंपल पार्किंग प्रोवाइड कर दी, उसमें तो कस्टमर आके गाड़ी खड़ी कर देगा। एक आप वैले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर वैले सर्विस की डिलीवरी किस तरह से होगी कि जब वो वैले डेस्क के पास आके गाड़ी खड़े करेगा, आपका आदमी जाएगा, ही विल ओपन द डोर फॉर द पर्सन एंड ही विल टेक द कीज फ्रॉम द पर्सन। अब वो कीज जाएंगी कहाँ पे? दे विल गो इनटू द की बॉक्स। वहां एक वो पूरा वो बना हुआ होता है लाइक अ बॉक्स विद जिसमें हुक्स बनी हुई होती हैं, और आप कस्टमर को वो टोकन दे देते हैं कि जी योर टोकन इज योर कार इज टोकन नंबर 21, और 21 हुक के ऊपर आप उसकी गाड़ी की कीज जो है वो लटका देते हैं, सो दैट अब उसको भी पता है कि मेरी जब भी मैंने कार कॉल करनी है आफ्टर फिनिशिंग द होल एक्सपीरियंस, वो कॉल करेगा और इनको बताएगा कि कार नंबर 21 ले आए आप, तो वो 20 कार नंबर 21 की कीज लेके जाएगा और वो जाके वहां से ले आएगा और ला के फिर आपको वहीं पे ही एंट्रेंस के ऊपर गाड़ी जो है वो हैंड ओवर करेगा। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है, इसको अगर वो आपने लड़के इस तरह के रखे हुए हैं जो वहां से स्क्रीचे वगैरह लगाते हुए आएंगे, तो आपने तो फौरन गुस्से हो जाना है। यानी जो सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है ना, किस तरीके से आपने वो सर्विस डिलीवर करनी है, वो उसके एटिकेट्स होते हैं, और उसके उस तरीका कार जो है वो प्रॉपर तरीके से वजह किया होना चाहिए, और बड़े अदब एहतराम के साथ आपने गाड़ी ला के वहां खड़ी करनी है, उसको ऑन करके अगर गर्मी है तो एसी पहले से ऑन कर दें, उनको कहें कि सर इफ यू कैन वेट 10 मिनट्स, तो हम वो गाड़ी को अंदर से उसका जो टेम्परेचर है उसको कंड्यूसिव करके फिर आपको कार हैंड ओवर करेंगे। तो वो कस्टमर बड़ा खुश होएगा, हालांकि गाड़ी उसकी है, पेट्रोल भी उसका खर्च होना है,
लेकिन आपने 10 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी ठंडी हो गई, उसके बाद ला के आपने उसको हैंड ओवर की, तो क्योंकि वो जब होटल में से आ रहे हैं तो अंदर सारा सेंट्रली एयर कंडीशन था, उसमें से यकलफ वो आके गर्म गाड़ी में बैठेंगे तो बॉडी उनकी का बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा बहुत ज्यादा। उस चीज को आपने पहले ही अकाउंट फॉर कर लिया, तो दे वेंट ऑफ very satisfied with your courtesy and the service that you provided to them. If in mature industries in which the core service tends to become commoditized, the search for competitive advantage often centers on creating new supplementary services or significant improving performance on existing ones. तो ये जिस तरह गाड़ियां शुरू के अंदर शुरू में गाड़ियां हैंड ओवर होती थी, तो वो गाड़ी उसी तरीके से ग्रीस लगी हुई ना वो कस्टमर को दे देते थे, और वो भी कस्टमर भी खुशी खुशी ले जाता था, खुद ही जाके सर्विस स्टेशन के ऊपर धुलवाता था और सारा कुछ करवाता था। अब शोरूम्स वाले क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सर आप प्लीज वेट करें, हम गाड़ी धुलवा के उसका टायर प्रेशर चेक करवा के सारा उसके इंजन ऑयल उसके अंदर 10 लीटर पेट्रोल भी डलवा देते हैं वो, और ताकि आप नई गाड़ी जिस वक्त लेके निकली है तो ये ना हो कि वो पता चले कि ई से भी नीचे सुई गई है। सर वो ग्रीस से एक फायदा भी तो होता था ना, वो जब तक गाड़ी पे ग्रीस लगी होती है तो कोई उसके ऊपर कचरा नहीं चिपकता। वो बातें आपकी सही है, लेकिन अब आपने गाड़ी खरीद ली है और हम आपको गाड़ी हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो फिर आपको सारा उसके ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल पूरा सब चीजें, पानी वगैरह, रेडिएटर, हर चीज चेक करके टायर प्रेशर पेट्रोल डाल के रेडी स्पिक एंड स्पैन चमकती हुई गाड़ी जिसके ऊपर पॉलिश भी आप कर देना, उसके ऊपर भी कचरा नहीं चिपकता, वो आप उसको हैंड ओवर करें, साफ सुथरी गाड़ी। दीज आर सप्लीमेंट्री सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग एज अ शोरूम। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ऐसी ग्रीस वाली चाहिए, तो आप उसको उसी तरीके से हैंड ओवर कर दें। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, ठीक है सर। It depends. Another important differentiator can be the way the product is delivered. That is the service delivery process. And it is not the outcome of a service delivery, but the way this outcome is achieved and often differentiates one service provider from another. अब एक है वो वेटर हाथ के अंदर सारी डिशेस उठा के ले आया है, एक के ऊपर एक उसने रखी हुई हैं, और वो ला के जी उसने आपकी टेबल के ऊपर रख दी है और कहा हाँ भाई ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। दूसरा उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक ट्रॉली के अंदर सारी डिशेस जोड़ी हुई थी और वो ट्रॉली ला के आपकी टेबल के पास खड़ी की, आपको कहा एक्सक्यूज मी सर वी द फूड इज सर्व्ड, तो वो आप सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं। उसके बाद इफ यू आर हैविंग डिस्कशन तो आप यू ब्रेक इट फॉर अ मिनट और सो, उसने आपसे परमिशन ली है और अब वो एक एक डिश जो है वो करके आप सब लोगों को के सामने वो रखा जाएगा और उसको प्लेस कर देगा। तो इन दोनों सर्विस डिलीवरीज में कोई फर्क है? सो बहुत ज्यादा है, और इन्हीं चीजों को कस्टमर नोट कर रहा होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं उनके पास वो एक जो होता है ना, मतलब फर्स्ट करें जो टेबल ऑफ 12 और दे कंडक्टिंग अ बिजनेस मीटिंग या कुछ, तो एक वेटर वहां पे वो असाइन कर देते हैं कि तुमने यहां से हिलना भी नहीं है जब तक ये लोग जाए नहीं, ताकि इनको किसी वक्त किसी चीज की भी अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो तुम फटाफट वो इनकी नीड पूरी करो। अंडरस्टैंड? इस तरह की आपको एक्सक्लूसिव सर्विसेज देनी पड़ती हैं टू यानी इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस, और वो कस्टमर फिर दोबारा भी वहां आपके पास आते हैं बिकॉज दे फील लाइक कि देयर इन देयर ओन ऑफिस, जहां पे उनकी अपने ऑफिस में वो होता है तो वो अपने बेल बॉय को फौरन बुला सकते थे, अपने ऑफिस बॉय को, तो यहाँ आपने एक वेटर उनको असाइन कर दिया कि यू विल constantly stay with them till their meeting is complete and finished and they are off. Designing a service product is a complex task that requires an understanding of how the core and supplementary services should be combined, sequenced, delivered, and branded to create a value proposition that needs and it should meet the needs of target market segments. आपने अगर डिफरेंट यानी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके अंदर टियरिंग इज ऑलवेज a good option because there are customers who want exclusivity
and they are ready to pay for that exclusive service. Some of the people don't even know that what type of exclusivity we'll be looking for. तो अगर आप कस्टमर को एजुकेट कर दें कि वी हैव 3 डिफरेंट सर्विसेज, और एक में तो ये स्टैंडर्ड आपकी जिस तरीके से आपने ऑफिस कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह करनी है वो हो जाएगी, दूसरी के अंदर हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट ये किया हुआ है कि हमने टी जो है वो सेपरेट एरिया में उसका अरेंजमेंट किया है, और वहां पे हम आपको जो है वो पियानो का म्यूजिक अरेंजमेंट भी हमने किया हुआ है, या जल तरंग होता है उसके अंदर पीसी के अंदर, तो वो बड़ा लाइट सूदिंग म्यूजिक होता है और उससे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर हैविंग टी तो उसके साथ उन्होंने आपको जल तरंग का वो आदमी भी आ गया, वो उसने बैठ के वो उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एंड वो आपको सिम्फनी और इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स भी साथ सुना रहे हैं, साथ यू आर हैविंग टी और आपकी चिट चैट हो रही है। यस सर। तो वो मीटिंग का मजा ही दुबाला हो जाता है, बजाय ऐसे एक सर आदमी आ रहा है एंटरटेनिंग और बना वो के देते हैं साथ साथ, जी एंटरटेनिंग करते हैं साथ साथ उसको सर के मतलब हो ना वहाँ बोर ना हो। हाँ, तो वो उनको याद रहता है कि यार वो उधर ही चलते हैं, वहां वहीं पे मीटिंग करते हैं जाके, सर वो मूड बड़े भी फ्रेश हो जाता है। मूड फ्रेश हो जाता है बंदे का, क्योंकि जो भी रीजनल मैनेजर आ रहा है उसने डायरेक्ट अपनी स्लाइड्स ऑन की और वो शुरू हो गया, जी हमने अपने एरिया के अंदर ये किया, इतने हमने टारगेट्स अचीव किए, इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए, इतना ये हुआ, इतना वो। कहना भाई हम तो सारा साल यही काम करते रहते हैं, समझ आ गई कि नहीं? अब यस सर, वो बात वही आती है ना, दैट हाउ यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, मतलब अपना मैसेज हाँ आप कैसे दे रहे हो, तो वो एंटरटेन करके देते हैं, आवाम को समझ भी आती है, बोर भी नहीं होती है आवाम, तो मतलब ये हाँ, उनकी अच्छी चीज होती है। तरीके के साथ, यानी वो पूरा आपने उनका वो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक लाइट सा बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपने ऐसे ही चला है सर, दिया, ऐसे ही है। तो वो या लोग बड़े वायलिन खुश या रहते हैं। पियानो यूज करते हैं सर। और बिल्कुल पियानो सही यूज कह रहे करते हैं, पियानो में बड़े हैं। यस सर, मजेदार रहती है। पियानो और वायलिन मतलब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ये हाँ, मीटिंग इस हमारी तरह एक की टीचर थी, कॉन्फ्रेंसेस में। वो जिस वक्त बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते थे ना, तो वो केसीओ का पियानो नहीं होता था पोर्टेबल, जी 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 यस वो सर। ला के ना वो बजाना शुरू कर देते थे कि ठीक है आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज हम ये पियानो बजाएंगे। तो वो वाह 10 एक वाह। मिनट पियानो बजाते थे तो बच्चे ना बड़े फिट फाट हो जाते थे, अच्छे मूड में आ जाते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि आप बेटा थोड़ा सा पढ़ ना लें, तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आप पढ़ लेते हैं यू नो। सर यहाँ भी आवाम का यही हाल हुआ है, तो हम भी को 5-1 मिनट का सेशन रखें। सर तो देखिए, कोरोना की वजह से सारी आवाम खुश्क पड़ी है, हमारी भी, हमारे सेशन में सारी आवाम खामोश बैठी हुई है। हाँ अब सेशन को ना अब उसको हम सीन ऑन कर देते हैं कि अब आपका सही क्वेश्चन सर, आंसर सेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, अब पाँच आप एक लोग, मिनट के लिए होना चाहिए। हाँ अब आप अपना बताएं कि आपको क्या क्या चीजें आपके ख्याल में, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज डिलीवरी की बात हुई है और उसके अंदर मार्केट सिनर्जी की बात हुई है, मार्केट रिसर्च आपने किस तरह से करनी है, आपने कंपेटिटर डाटा किस तरह इकट्ठा करना है, इन सारों के ऊपर आप लोग भी अपना, आप भी बैंक्स में जाते रहते हैं, चीजें देखते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। अब अगर आप गाड़ी का लोन लेने के लिए जाते हैं तो डिफरेंट आपने क्या क्या ऑफर्स देखी हैं जो कि बैंक्स वाले ऑफर कर रहे हैं, या स्टडी लोन्स के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं? और गाड़ी के लिए सबसे पहले उनकी उनकी वही टीयरिंग होती है, उन्होंने 3 इयर्स प्लान भी रखा होता है, 5 इयर्स भी रखा होता है, 7 इयर्स भी रखा होता है। शाबाश। और सर फिर उसी हिसाब से वो डाउन पेमेंट लेते हैं। अगर आपने 3 साल वाली करनी है तो उसकी जाहिर सी बात है डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी, और उसकी जो एक एक इंस्टॉलमेंट भी होगी वो भी ज़्यादा होगी। जो 5 साल हाँ। वाली होगी वो थोड़ी मिड टाइप होगी, और जो हम्म। 7 इयर्स होगी वो लो होगी। हाँ, उसमें इनिशियल आपकी सम भी आपने 20% देनी होती है, और वो यस सर, स्टैगर्ड बेसिस के ऊपर छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट 7 ईयर्स पे बनी हुई होती है। बिल्कुल सर, ओवरऑल जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा बन जाता है, ज़्यादा बनता लेकिन है, बिल्कुल सर। कस्टमर देख रहा होता है कि यार मैंने अपनी सैलरी में से मैं आराम से 20 निकालता जाऊंगा और नई गाड़ी भी चला लूंगा, तो ये 7 ईयर्स वाला ही ठीक है। बिल्कुल सर, वो यही सोचता है, लेकिन उसकी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाती है सर, हाँ, ओरिजिनल पेमेंट प्राइस से काफी भी। ज्यादा बन जाती है, लेकिन कस्टमर बेनिफिट देख रहा होता है ना, यही तो वो चीज बता रहा है आपको यस कि सर, बहुत सारे कस्टमर्स को इतने ज्यादा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस नहीं करनी आती होती, वो अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं कि, और अपनी जो है एबिलिटी टू पे भी देख रहे होते हैं। वो 50,000 रुपए की किस्त एक महीने में नहीं निकाल सकता, लेकिन गाड़ी भी उसने चलानी है। बिल्कुल। वो उसकी ख्वाहिश है कि उसने नई गाड़ी चलानी है, तो आपने उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, और उसको आपने 20,000 वाला ऑप्शन भी दे दिया, उसको वो सूट करता है।
अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस उसके पास इकट्ठे पैसे नहीं है कि वो जाके नई गाड़ी खुद ब खुद इकट्ठे पैसों से खरीद ले। तो इस वजह से वो भी फिर उसके उस डील के अंदर फिट इन हो जाता है। बिल्कुल और सर। ज्यादातर बिजनेस वाले लोग यही करते हैं, वो कहते हैं अगर आपने बच्चों को गाड़ी लेके देनी है तो वो कहते हैं ठीक है यार 7 ईयर्स की इसकी इंस्टॉलमेंट जाती रहेंगी, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा बिजनेस में से निकाल के उसको पे करते रहेंगे। इकट्ठे बिजनेस में से आप 40 लाख रुपया निकाल लें तो वो आपको फाइनेंशियल क्रंच फील होना शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल सर। उसकी बजाय बच्चों को गाड़ी भी ले दी और आराम आराम से 20-20 हजार की इंस्टॉलमेंट करा ली, वो पे करता गया, बच्चे भी खुश और आपका अपना काम भी डिस्टर्ब नहीं या हुआ। सर, कंपनी ने अपना काम भी निकाल लिया। हाँ, कंपनी एम्प्लॉइज के साथ भी यही करती है और उनको कहती है गाड़ी तमीज से चलाना, 5 साल मुदस्सिर 5 साल के बाद ये गाड़ी मैं आपको दे दूंगा बुक वैल्यू पे। बिल्कुल। फिर तो मुदस्सिर उसको गाड़ी को खुद ही पॉलिश भी करवाता है और वॉश भी करवाता है, और अगर कहीं आगे कोई वो आ जाए, बारिश का पानी आ जाए तो बाहर निकल के पहले अपना कोट उतार के जमीन के ऊपर बिछाता है, उसके ऊपर से गाड़ी ऐसे एक मिस्टर स्मगली हमने देखा था, वो ये करता था कि उसने अपनी गाड़ी को इतने सुकून के साथ रखा हुआ था कि उसको पता था कि ये 5 साल बाद उसको मिल जानी है, तो वो बहुत संभाल के फिर गाड़ी चलाते हैं एम्प्लॉइज। और कंपनी को फायदा ये होता है कि गाड़ी हर वक्त टिप टॉप कंडीशन में होती है कि उसने कस्टमर अपने किसी भी कस्टमर के काम से मुदस्सिर को भेजना है तो मुदस्सिर ये नहीं कह रहा होगा कि सर आज मैं वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ गाड़ी को, गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं वो करेगा कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल बाद गाड़ी मुझे मिल जानी है, ये मेरा एसेट है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर। अब मोहम्मद अली खान बताए भाई, आपको क्या समझ में आया है? आपने इंटरनल मार्केटिंग करने की क्यों जरूरत होती है? कस्टमर्स को सारा पहले प्रोडक्ट के बारे में क्यों समझाना होता है? अपने जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, जिससे इससे पहले कि वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें, आप इंटरनल मार्केटिंग करके उनको क्यों सारा प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज समझाते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स? सर ताकि पहले उनको पता हो कि उन्होंने किस तरह डील करना है कस्टमर के साथ और उनको किस तरह सेटिस्फाई करना है। कस्टमर के फायदे की बातें क्या क्या हैं और हमारे और बैंक के नुकसान, हाँ फायदे की क्या क्या चीजें हैं। जी। ये ना हो कि 2-2 मिनट बाद वो कहे कि ये 2 मिनट ठहर जाए, मैं जी अदनान साहब से पूछ के आता हूँ। ये सर ये हमजा साहब के डिपार्टमेंट की बात है, मैं हमजा साहब से पूछ के अभी आता हूँ। वो यस कहेगा सर। भाई आप किस चीज के लिए मोहम्मद अली खान ना, आप मेरे पास किस लिए बैठे हुए हैं? जो आप अब बिल्कुल ये सर। चीज आप अदनान साहब से पूछ रहे हैं, वो चीज आप दानिश साहब से पूछ रहे हैं, वो चीज आप हमजा साहब से पूछ रहे हैं, ये होमवर्क आपका पहले हुआ होना चाहिए ना। यस सर, पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किसके बारे में मतलब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या नहीं। हाँ, एक कस्टमर है, उसने अपनी अपनी नई नई अपनी गाड़ी बेची है पुरानी वाली, तो वो कहता है कि भाई मैं 20% नहीं, मैं 40% पे करना चाहता हूँ अप फ्रंट, यस सर। तो उससे मेरी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। अब आपके पास एक्सेल के ऊपर पहले से शीट बनी हुई होनी चाहिए और यस उसके सर। अंदर आप वो फार्मूलाज ऐड करें, हुए हुए हों, आप वहां पे उसकी जो इनिशियल अमाउंट है वो ऐड करेंगे और उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने सारी रिवाइज इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी। वो आप कहेंगे हाँ जी, अगर आप अप फ्रंट 40% पे कर देते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट रिड्यूस होके सिर्फ इतनी रह जाएगी। जी बिल्कुल। कस्टमर बड़ा खुश हो जाता है कि यार ये मोहम्मद अली तो बड़ा समझदार आदमी है, इसने पहले ही सारा होमवर्क करके रखा हुआ है। अंडरस्टैंड? सर ये ये नहीं फूड पता डिलीवरी यस सर। सर इसी वजह से तो फिर वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है ना आगे से कि हमें मतलब उनको एक वो मिल जाता है कि किस तरह चलना है हमने किस तरह नहीं। हाँ, उसका एक अपना ज़हन होता है कस्टमर का, आपने उसके सवालों के उसी वक्त जवाब दे दिया, बजाय आप कहते हैं ठहरे जी मैं मुदस्सिर साहब से पूछ के आता हूँ, हमारी मैडम इकरा हैं, वो ये सारा वो फाइनेंस वो डील करती हैं, तो वो बिल्कुल। बताएंगी कि अब आपकी किस्त कितनी बनेगी। तो इस तरीके से आप उसका टाइम जाया करेंगे और वो थोड़ी देर के बाद फेड अप होके कहेगा कि भाई अली खान साहब आप ऐसे करें ना, पहले आप इंफॉर्मेशन ले ले सारी, फिर यस सर। आप मेरे ऑफिस आ जाना किसी दिन, फिर वहां डिस्कस करेंगे, है सर ना। ऐसे ही कस्टमर स्विच हो जाता है। यस सर। हाँ, स्विच हो जाता है, वो एक दफा आपके वहां ब्रांच से बाहर निकल गया ना, तो यस साथ ही सर। फैसल बैंक है, साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, साथ फलाने फलाने अस्करी बैंक है, उसने किसी और बिल्कुल में घुस सर। जाना है। और वहां आगे जो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड उसको बंदा मिलेगा, उसने 5 मिनट्स के अंदर अंदर उसको सारा कर शर के पैक करके उसको कह रहा है सर ये लें जी फॉर्म्स हैं, ये आप बस यहाँ यहाँ साइन करते जाए, बाकी फॉर्म भी मैं खुद फिल कर लूंगा। यस सर। ऐसे चीते होते हैं, है ना। बिल्कुल सर।
ठीक है ना, वो कस्टमर फटाफट वो जितनी 5 6 7 जगहों पे साइन करना होता है वहां वो साइन करता है, उसके बाद कहता है कि सर आपका ये सारा लोन प्रोसेस हो जाएगा, आप मुझे चेक जो है इनिशियल जो आपने डाउन पेमेंट करनी है उसका आप मुझे चेक दे दें, और बाकी Yes. फिर मैं आपको आफ्टर 3 days अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट से सारा लोन प्रोसेस करवा के फिर आई विल गेट बैक टू यू। सर उनकी फुल प्रैक्टिस हुई हुई थी, वो बंदे को सांस भी नहीं लेने देते, जल्दी जल्दी साइन करवा लेते हैं हर जगह। हाँ क्योंकि जो सोची पे थे बंदा गया, अगर आपने उसको ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी, वो तो गया आपके हाथ से फिर, क्यों भाई शान अली? सर एक दफा जब वो बता देते हैं तो उसके बाद वो कस्टमर को हाथ से नहीं निकलने देते, ये तो उनका मार्केटिंग स्किल होता है उनके पास। उन्होंने सिर्फ हाँ अपना एक दफा मैसेज देना होता है और उन्होंने बस साइन करवाना होता है कि किसी तरीके से इन करें। कस्टमर को हाँ जी 75% चीजें तो साइन करने के बाद में जाकर समझ आती हैं कि ओके इसका तो मतलब ही ये था। वो पहले साइन कर छोड़ते हैं उनकी बातों में आके, हाँ, लेकिन वो शुरू अपना शुरू में काम तो करवा लेते हैं, कस्टमर को वो घेर लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की कि आपको बंदा बड़ा अच्छा लगा। एग्जैक्टली आपसे तो यही यार चीज, इसी मोहम्मद अली चीज को खान जो देखते है हुए ना, तो सर आप साइन कर देते हैं, इसी वो चीज को तो आदमी देखते Yes, हुए बहुत हम अच्छा है। साइन कर देते तो हैं। आप उसको ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये बाकी मोहम्मद अली खान जो है ना ये खुद करवा लेगा सारा, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह ऐसे रहे हैं ही है सर। सर, और थैंक उस यू सर। ट्रस्ट के अंदर आप साइन कर देते हैं, वरना इतने कोई काके आप भी नहीं होते। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है, इखलाक बहुत अच्छा है इसका, और इसकी नॉलेज पूरी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो जो मिसिंग लिंक्स हैं वो ये खुद फिल कर लेगा। ऐसे ही है सर। Yes sir, ठीक the है ना? nature and the way to deal with the customer. बिल्कुल। और अगर मुझे कोई बाद में चीज मेरे जहन में आ भी गई तो मैं इसको फोन करके पूछ लूंगा। हाँ ऐसे ही है सर। सर वो ठीक है कि वो कहते हैं कि वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट करो, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। हाँ, तो वो कहता कि बेटा ये मैंने साइन तो कर दी है, लेकिन इसको जरा एक दिन होल्ड पे रखना, मैं अपनी हाँ फैमिली से डिस्कस कर लूं कि कलर का मैं अभी श्योर नहीं हूं कि कलर कौन सा लेना है, तो फिर मैं आपको फोन पे बता दूंगा, फिर कलर वाला बॉक्स आप उस वक्त टिक कर लेना। ऐसे ही है सर, सही कह रहे हैं ठीक है सर। ना? तो यस लेकिन Yes sir. साइन मैंने अभी कर दिए हैं ताकि आप अपने एंड पे ऊपर इसका जो प्रोसेस है वो जिस वक्त हाँ हम डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट कर लो इसकी। वो आप complete अपनी कर लें। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लो, शाबाश। यस सही है, और सर। चेक भी आपको दे दिए। तो यस सर। बहुत सारी चीजें यहाँ पाकिस्तान में ना एतबार के ऊपर चलती हैं, ऐसे ही है सर, और काफी हर चीजें मार्केट चलती का हैं। डिफरेंट सिनेरियो होता है। गोरों का और हिसाब किताब होता है, वो कहते हैं नहीं हर चीज ऑन द बाय द बुक चलना चाहिए सारा कुछ। यहाँ सर पाकिस्तान वो में ये चलते होता हैं है, प्रॉपर ईमेल सिस्टम के ऊपर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो लोग चलते हैं। हाँ यहाँ ये होता है कि यार मैंने क्या जो दिया है, अब मोहम्मद अली तुम्हें समझ नहीं आ हाँ रही, सही आ गई है बात सर, है, बताएं। आ इधर गई है ये मुझे चीज समझ। बड़ी कैटर करती है। इवन ऐसे ही हाँ है आप सर। 10 मिनट। ये बड़ा अना का मसला लोगों का बड़ा है कि मैंने जो ऐसे ही है कह सर। दिया है मेरे हाँ से ऐसे ही है बात नहीं है सर। तुम्हें। तो फिर आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। ऐसे ही है तो सर। इवन आप सारा किसी नए तुम्हें बंदे के कैसे पास कराना है। भी, मतलब जो नया यहाँ मार्केट वाला भी होता है ना, उसके पास भी अगर आप बैठे तो वो भी आपको यही कहता है कि सर आपको हम कह रहे हैं, आपको हम कह रहे हैं ना, आप बिलीव करें, ऐसा ही होगा ये वो, इस तरह ये हाँ चीज बड़ी कैटर वो कर लेते हैं। हाँ। तो और जो मतलब यहाँ वो रख रखाव वाला और इस तरह का ना, या कस्टमर का जो बिहेवियर है वो कह रहा था, आप तो उसका परचेज बिहेवियर जो है वो देखना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं उनको अगर आप नवाबी ट्रीटमेंट दें और उनको आप ऐसे फील करवाएं कि वो किंग ऑफ द बैंक हैं, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, वो आपसे सर ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं करते। सर बहुत सारे और लोग हैं यस सर। पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं। है ना बिल्कुल सर। कि वो वहां उनके लिए दरवाजा खोलेंगे और स्टाफ के 2 3 मेंबर्स आ जाएंगे, 1 2 लड़के होंगे, 1 2 लड़कियां होंगी, वो सारे उनके आगे पीछे भाग रहे होंगे, उनके काम कर रहे होंगे। उस बंदे को ऐसे लगेगा कि मैं तो बादशाह हूँ भाई। सर वो खुद तो भी अकाउंट खुलवाएगा और अपने दोस्तों को भी कहेगा इधर ही अकाउंट खुलवाओ। हाँ, उधर तू उठे चल, तू वेखी मैं लोग जानते ने उठे है जो ब्रांच चैंटल होंदा जावा तो एक बारी हल जाती ब्रांच पूरी। बिल्कुल सर, सही ऐसे है ही। नहीं? तो ये होता है, लोगों का प्रॉब्लम होता है, और वो इस बेसिस के ऊपर वो मतलब आपकी इतनी अच्छी वो उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं डिफरेंट टाइम्स टू गिव मेंटल पीस ऑफ माइंड टू द कस्टमर। जब कस्टमर को मेंटली वो रिलैक्स्ड हो ना आपके साथ, तो वो फिर आपको यस सर। ट्रस्ट भी करता है, और वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी फोरगो कर देता है, क्योंकि इंसान है, गलती तो हो ही जाती है बंदे से कहीं ना कहीं।
यस सर। क्यों भाई? सर बैंक्स वालों ने भी वीआईपी रूम्स बनाए होते हैं जिसमें वो अपने स्पेशल कस्टमर्स को लेके जाते हैं। शाबाश। तो उसमें उन्होंने अच्छा वीआईपी स्पेशल फर्नीचर लगाया होता है, जिस तरह अब हम अल्फला की ब्रांच में जाए ना, तो वो यस सर, ऊपर जो उनकी प्रीमियर सर रूम है। वहां पर जो कस्टमर वगैरह आते हैं उनके पास उस वीआईपी रूम में उनको कॉफी वगैरह सर्व करते हैं, उनकी यस बड़ी सर। अच्छी वो करते हैं। जबरदस्त, वाह जी वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे तो थैंक यू वो, सर, थैंक यू सो मच सर। और वो कस्टमर खुश हो जाता है कि वो मुझे यार वो वीआईपी एरिया में ले गए जनाब। और यस जी सर। वो उनके सारे स्टाफ वाले यस सर कर रहे थे, फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की कॉफी पिलाई। यस तो वो सर, तो बंदा ना जमीन से 2 फुट ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं सर। यस सर। ठीक है ना? और वो कहता है कि यस यार सर। ये बस मैंने ये इसी बैंक के साथ ही डील करना है, और मैं और जिस बैंक ने उसके साथ ये बिहेवियर किया होता है तो उसकी बिला वजह ही मार्केटिंग हो जाती है। वो बाहर जाके बताते ही इतनी आवाम को है, तो वो बैंक की बिना बोले इतनी मार्केटिंग हो जाती है कि ये इतना अच्छा हाँ, बैंक है। अपने दोस्तों में यस बैठ के सर, वो गुडविल उनकी फिट हो जाती सारा प्रमोट करता है उसको पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। यस सर, बिल्कुल वो सर। वो उन लोगों को एडिशनल, उसको इसको कहते हैं स्पिल ओवर बेनिफिट। क्या कहते हैं? है। स्पिल स्पिल ओवर ओवर बेनिफिट। बेनिफिट उनको मिल जाता है कि वो उसको इतना ओवरवेलम करके भेजते हैं कि वो वहां जाके तो फिर वो अपना उनकी आप भूल तारीफों जाता की कुल बांध देता है ये। ठीक है। और वो क्योंकि जेन्युइनली अपने दिल से तारीफ कर रहा होता है, तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि यार वी शुड आल्सो गो एंड चेक द सर्विसेज ऑफ दिस बैंक। ठीक है। अब कोई चीज यस जो सर। क्लियर ना हो वो बताएं। सर, सब कुछ क्लियर है। क्लियर हो गया? यस गुड। सर। अब आप लोगों ने एग्री सर। रिसर्च करनी है। क्लियर सर। हाँ, आपने मुझे 3-4 बैंक्स की फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर रिसर्च करके और 3-4 होटल्स के ऊपर आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सा अवारी क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, पीसी क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, बैंक सर फॉर अल्फला। द एक्सक्लूसिव वंस। हाँ, एक्सक्लूसिव वंस ना। एक तो भाई ओके है सर। फैसिलिटेटिंग सप्लीमेंट्री सर्विसेज, वो तो सारे यस बैंक ही सर, देते हैं। जो यस सर। इनहेंस सप्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो आपने मुझे बतानी है। ठीक है सर, डन हो ठीक गया। हो गया ओके सर। क्योंकि सर। जब हम कब अपनी तक ये सर्विस बताना है? डिजाइन, अब नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन सेशन होगा फ्राइडे को, ठीक है सर। तो ठीक है उसमें सर। सब लोग पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी अपनी रिसर्च लिख के लाए होंगे, और उससे सब लोगों को न्यू सर्विस डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। यस सर। सर ठीक वो है यही सर। इसी तरह डिस्कस करना है कि वो कोई डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करना है क्लासरूम वगैरह में, कि यही डिस्कस करेंगे वो? पहले हम ये सारे डिस्कस करेंगे ना, तो हमारी ठीक हो गया एक सर। जो जनरल नॉलेज बिल्डिंग होगी सबकी, यस सर, बिल्कुल के सर, ऊपर हम बिल्कुल फिर होगी। एक जामिया किस्म का एक असाइनमेंट तैयार कर लेंगे वीकेंड के ऊपर। वाह वाह, ठीक है यस सर। सर, तो सही कह रहे हैं। ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो सिर्फ 2 पेज का होगा, लेकिन उसमें बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे। यस ठीक है सर। सर। ठीक है। और हमारे एक टीचर कहते थे कि इट विल बी लाइक डायमंड्स शेडेड इन अ पेज, कि वो हर जो एक एक अच्छा आइडिया आप लोग लेके आएंगे, वो दैट विल बी लाइक अ डायमंड। नहीं? बिल्कुल यस सर। सर। ठीक है ना? तो ये सर रिसर्च करनी भी बहुत जरूरी है, ठीक हो वरना गया फिर सर। हमारे में और मैट्रिक वाले में कोई फर्क नहीं है कि हमने वो 6 हेडिंग्स याद की और उनके नीचे हमने 4-4 लाइनें लिख दी और टीचर ने हमें पास कर दिया, तो फिर मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ मैट्रिक वाला? मैट्रिक यस वाला सर, भी सारी हेडिंग्स याद करके लिख सकता है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। उसको आप दे दें 3-4 घंटे का टाइम दे दें, वो ये सारी हेडिंग्स याद करके और ना लिखे तो मुझे आप पकड़ लेना। सही बात है सर, उनका रट्टा बल्कि ज्यादा अच्छा होता है, वो सही लिख लेते हैं। हाँ, सॉलिड रट्टा होता है उनका। लेकिन यस हमें सर। हमने रिसर्च करके हमने पूरे मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करनी है, कोई एक सेक्टर पकड़ लेना। एक लड़का बैंकिंग पे कर ले, एक ऑटो सर्विसेज पे कर ले, एक उस पे होटल सर्विसेज पे कर ले, एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे कर ले, इस तरह अलग अलग। ठीक है सर सर। ये एक्सक्लूसिव सर्विसेज के पॉइंट बना के लिखने हैं। हाँ जी, आपके पास पॉइंट्स लिखे होने चाहिए आपके सामने, जिस तरह आप एक बिजनेस मीटिंग में गए हैं बिकॉज यू आर बिजनेस यस सर। मैनेजर, और आपके यस जनरल मैनेजर ने आपको बुलाया है कि आप सारे बिजनेस मैनेजर्स को पूरे मुल्क से उसने इकट्ठा किया एक जगह के ऊपर। आपकी मैं पीसी बुरबन में मीटिंग कर रहा हूँ, उधर आप सब लोगों ने आके अपने वैल्यूड आइडियाज देने हैं कि हम अपनी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी न्यू सर्विसेज इंक्लूड कर सकते हैं, और पुरानी सर्विसेज को किस तरह से हम लाइक कर सर, सकते जिस हैं। कंपनी को हम पकड़ने लगे हैं उसके इनसाइट्स हमारे पास होने चाहिए, इनसाइट्स उसकी सारी
हाँ, वो हमारे पास होनी चाहिए। 4-5 जो मार्केट लीडर है ना, सर्विस लीडर जो उस कोर बिजनेस में है, उनको आपने स्टडी करके आना है। इकरा, आपने बैंकिंग की हुई है इंटर्नशिप? यस सर। तो आप बैंकिंग के ऊपर बेटा प्रिपेयर कर लें। सर ये जो असाइनमेंट की थी मैंने, ये सारी हमने पहले जुमे को वर्बल होनी है। आपके पास सॉलिड पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए कि इस बैंक में ये एनहांस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके प्रीमियर कस्टमर्स को या कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, और सिंपल कस्टमर्स को भी वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आपका थोरो जो है ना वो रिसर्च हुई होनी चाहिए। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है सर। Yes, सर sir. मंडे से ये सर थोड़ा सा उसका बता दें, मंडे से जो मॉक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक मतलब जो क्विजेस वगैरह सर टीचर्स ने लेने हैं हाँ के मिड टर्म्स के पैटर्न के, लाइक मिड टर्म की प्रैक्टिस करवाने के लिए यही ऑनलाइन जो करने हैं, तो सर हमारा सर्विस मार्केटिंग का भी होगा? बिल्कुल शुरू हो जाएगा ना। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कोर सर्विसेज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री सर्विसेज क्या होती हैं, व्हाट आर द 4 डिफरेंट मेजर एरियाज इन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जिसमें वो पीपल प्रोसेसिंग, पोजेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और मेंटल स्टिमुलाई प्रोसेसिंग सर्विसेज है। तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा, उसके अंदर आपको सारा प्रिपेयर करके आना होगा। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 से, जो हमने रिसेंटली स्टडी लाइक किया। हमारा ये जो मॉक एग्जाम होगा सर, ये वर्बली होगा? नहीं, वर्बली नहीं होगा। आपको 3-3 4-4 लाइंस के आंसर लिखने होंगे। लिखने होंगे सर। सर ठीक है एमसीक्यू सर। बेस्ड है कि मतलब किस तरह से? क्वेश्चन रिटन होगा ना। आई विल राइट अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, और आपने उसका फटाफट 2-3 लाइनों का आगे से जवाब लिखना होगा। ओके सर। ठीक है ना? सर। तो ठीक है सर। और वो भी सारा डॉक्यूमेंट हो रहा होता है। जो कुछ आप चैट बॉक्स में लिखते हैं वो भी सारा डॉक्यूमेंटेड जाता है। यस सर। ठीक है ना? तो हम कहेंगे जी हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो वेल प्रिपेयर्ड थे, तभी से तो उन्होंने फटाफट चैट बॉक्स में वो आंसर देते गए। सही हो गया ठीक है? सर। हाँ, यस सर। क्योंकि अगर किसी ने चीटिंग करनी हो तो वो पहले बुक खोलेगा, फिर ढूंढेगा, फिर देखेगा, इतनी तो बहुत देर हो जाएगी फिर। यस सर। समझ रहे हैं ना आप? और जो प्रिपेयर्ड होगा वो यस ऑन द सर। स्पॉट ठक वो लिखता चला जाएगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल यस सर, सर। सही ख्याल। हाँ जी, जो आधे घंटे बाद रिस्पांस दे रहे होंगे ना, वो वहीं उसी वक्त स्क्रीन आउट हो जाएंगे कि ये वो वाले हैं। 2 नंबर वाला। हाँ